नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। अगले आधे घंटे में देखेंगे संसद के दोनों सदनों में क्या कुछ रहा खास, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बिहार में मतदाता सूची SIR पर चर्चा कराने समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों में अवरोध। कई बार के स्थगन के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री ने की विपक्ष के व्यवहार की आलोचना। अमेरिकी टैरिफ पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का संसद में बयान। कहा, व्यापार समझौते को लेकर भारत और अमेरिका के बीच वार्ता जारी। अपने किसानों और घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा करेगा भारत। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है देश। नासा और इसरो के निसार उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर वैज्ञानिकों ने की संसद में सराहना। मिशन को बताया भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान की ऐतिहासिक उपलब्धि। सैटेलाइट से भूमि पारिस्थितिकी तंत्र और समुद्री क्षेत्रों का अध्ययन। सदन दिन भर में सबसे पहले बात राज्यसभा से जुड़ी कार्रवाई की। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होने पर राज्यसभा ने इसरो और नासा के निसार उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने को लेकर वैज्ञानिकों को बधाई दी। India has successfully launched the NASA ISRO synthetic aperture radar NISAR satellite from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. It's a landmark collaborative mission between the Indian Space Research Organization ISRO and the National Aeronautics and Space Administration NASA of the United States. The mission reflects India's rising stature as a trusted and capable space-faring nation and underscores the remarkable strides made by our scientific community in advancing the frontiers of knowledge for the betterment of humanity. On behalf of the entire House, I place on record our heartfelt appreciation and congratulations to the scientists, engineers, and all personnel of ISRO and the collaborating teams at NASA, whose tireless dedication and brilliance have made the pioneering mission a reality. इसके बाद उपसभापति ने जरूरी विधायी दस्तावेज और समितियों के प्रतिवेदन सभा के पटल पर रखवाए। Papers to be laid on the table, Shri Gajendra Singh Shekhawat. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1A in today's revised list of business. Thank you, sir. Dr. Jitendra Singh. सभापति से मैं आज की कार्यवली की संख्या नंबर 2 के आगे मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। सुश्री शोभा करान लाजे। सभापति महोदय, I rise to lay the papers mentioned against my name in serial number 1C in today's revised list of business. Shri Kirti Vardhan Singh. I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned against my name at point number D of serial number 1 in today's revised list of business. Srimati Raksha Nikhil Khadse. Honorable Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of Hindi and English version of the papers as shown against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Thank you. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance, Dr. Dinesh Sharma. माननीय उपसभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के समक्ष यथा उल्लेखित वित्त संबंधी स्थायी समिति के 5 प्रतिवेदनों हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। Statements of the Committee on Welfare of Other Backward Classes, Dr. Kavita Patidar. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध
अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के तीसरे और पांचवें की गई कार्रवाई प्रतिवेदन 8वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट टिप्पणियों सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाले 2 विवरणों के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ। सदन में ओबीसी के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव रखा गया, जिसे ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया। Motion for election to the Committee on Welfare of Other Backward Classes. Dr. L. Murugan to move a motion for election of 10 members to the Committee on Welfare of Other Backward Classes. Respected Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to move that this House resolves that the Rajya Sabha to join the committee of both the houses on welfare of other backward classes for the term of 1 year beginning from the date of the first sitting of the committee, and proceed to elect in such a manner as directed by the chairman 10 members from amongst the members of the House to serve on the said committee. Motion moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. आज उच्च सदन में विभिन्न मंत्रियों के वक्तव्य भी सभा के पटल पर रखे गए। Statements by ministers. Dr. Jitendra Singh. Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House status of implementation of recommendations of league observations contained in the 145th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice, demands for grants of the Department of Personnel and Training. Thank you, Chairman, sir. Dr. Chandrasekhar Pemmasani. Sir, in pursuance of the direction 35 of the Honorable Chairman Rajya Sabha, I would like to lay statements showing status of implementation of the recommendations and observations contained in the 2nd and 5th report of Standing Committee on Communications and Information Technology on demands for grants 2024 to 2025 pertaining to Department of Posts and Department of Telecommunications, respectively, on the table of the House. Thank you, sir. Susri Shobha Karanlaje. Chairman, sir, with your permission, I wish to make the statement regarding the status of implementation of recommendations, observations contained in the 16th report of the department related to Parliamentary Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on Social Security and Welfare Measures for interstate migrant workers pertaining to the Ministry of Labour and Employment. Thank you. उपसभापति ने मानसून सत्र के दौरान लगातार प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही बाधित होने पर चिंता जताई और सदस्यों से इसके लिए आत्मावलोकन की अपील की। अनुरोध भी। In this session, we had opportunity to raise 120 questions, 120 0 hours and 120 special mentions, where else only 11 questions, 3 0 hours and 17 special mention could be done. Total time lost was 30 hours and 6 minutes. This time was members' time and not government's business time. Again, I would like to repeat, please, this time was members' time and not government business time. The mandate given by the people has not been fulfilled. It's a high time for us to introspect in the context of resolution unanimously. Please, please, please. Please, just listen. Tiruchi, just listen 1 minute. एक बार chair को बोलने का 1 minute मौका दे, please. The mandate given by the people has not been fulfilled. It's a high time for us to introspect in the context of resolution unanimously adopted by the Rajya Sabha on 1st September 1997 on the occasion of Golden Jubilee of Independence, which inter alia stated, I quote, that the prestige of the Parliament be preserved and enhanced, also by conscious and dignified conformity to the entire regime of rules of procedure and conduct of business of the Houses and directions of the presiding officers relating to orderly conduct of business, more especially by maintaining the inviolability of the question hour, refraining from transgressing into the official areas of the House or from any shouting of slogans. ये हमारा संकल्प था। हम खुद आत्मनिरीक्षण करें कि संसद में अपने लिए गए संकल्प के बारे में हम किस तरह का आचरण कर रहे हैं। प्लीज। इसके बाद उपसभापति ने नियम 267 के तहत मिले नोटिसों को अस्वीकार किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने शून्यकाल की कार्यवाही शुरू की, लेकिन विपक्षी सदस्यों के गतिरोध के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई।
members. Please. Sir, let the house be in order, sir. I'm already requesting you, please also request your colleagues. Tiruchiji, your member is speaking. Give protection to him. Please, I request you. So you are not interested? No, I'm interested, but the house has to be set in order. Please. Chairman, sir, the house has to be set in order. I'm already requesting you all. Let the house be set in order because they are asking for they are asking for a special intensive revision to be discussed. Yes, Chairman, sir. Chairman, sir, only 1 minute. 1 minute, Chairman, sir. Either you discuss. No, only 1 minute, Chairman, sir. They are asking You're not going on the call. The House only. will meet at 12 noon today. राज्यसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन की ओर बढ़ने लगे। पीठासीन उपसभापति ने घनश्याम तिवारी ने उनसे व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के जवाब के समय विपक्ष की ओर से बायकॉट की नेता सदन जेपी नड्डा ने आलोचना की। Respected sir, yesterday after a long discussion on Operation Sindoor, some of the opposition parties staged a walkout when the Honorable Home Minister commenced his reply. In this regard, I draw the attention of the Honorable members to the proceedings of both houses in the aftermath of the terrorist attacks in Mumbai in December 2008. It is a matter of record that discussions took place in both the houses on the statement made on behalf of the Ministry of Home Affairs. In the Lok Sabha, the then Home Minister and the Prime Minister replied to the debate, and in the Rajya Sabha, the then Minister of Home Affairs replied to the discussion. Sir, it is a matter of record that the chair had made it clear during the BSc meeting and in the House that it is the prerogative of the government to decide which minister should speak and reply to the discussion in the House. The opposition parties had demanded for a discussion and to elicit the information from the government on Operation Sindoor. However, when the opportunity came, the opposition parties in Rajya Sabha chose to walk out without listening to the Home Minister, to the reply by the Home Minister. Therefore, the demand of the opposition parties yesterday was clearly misplaced, and it displays a double standard given in the precedent I quoted just now about the discussions in both the houses on the Mumbai terror attack. पीठासीन उपसभापति ने संजय सेठ को अपना प्रश्न पूछने के लिए पुकारा। इस बीच सदन में विपक्ष की नारेबाजी और तेज हो गई, जिसके बाद कार्यवाही दूसरी बार 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। The House stands adjourned to meet at 2 p.m. दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष की ओर से अवरोध शुरू हो गया। इस दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सदन के नेता जेपी नड्डा के बयान पर अपनी बात रखी, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ किया कि चर्चा का जवाब कौन देगा, यह विपक्ष नहीं बल्कि सरकार तय करती है। इसके बाद कार्रवाई शाम 4:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कहा वो सबके लिए, हाउस के लिए भी एक रिकॉर्ड का बात है, इसलिए मुझे इसका रिएक्शन जरूर क्लैरिफिकेशन देना होगा। नड्डा जी ने, लीडर ऑफ द हाउस ने आज जो कहा, क्योंकि आप लोग कल नारा में भी कि प्रधानमंत्री जी सदन में क्यों नहीं आए और इसका जवाब क्यों नहीं दिया, ऑपरेशन सिंदूर का जवाब का यही नारा था। और कहने का ये था कि 2008 में मुंबई जो अटैक हुआ था, टेररिस्ट लोगों ने किया था, उसमें भी बहुत गंभीरता से दोनों सदन में चर्चा हुई थी। और ऑपरेशन सिंदूर में भी जैसा ऑपोजिशन ने मांग किया और सरकार ने माना और हम लोग ने चर्चा किया। सवाल ये है कि उन्होंने कल प्रधानमंत्री जी को जवाब देने के लिए कहा। परसों ही लोकसभा में 1 घंटे और 42 मिनट तक प्रधानमंत्री जी ने पूरा खुल करके देश के सामने में अपना बात सदन के माध्यम से रखा। अब
अगले ही दिन यहाँ जवाब था और गृह मंत्री उस पूरे संबंधित जो चर्चा हुए उसको जवाब देने के लिए वो सक्षम है। तो जब गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, इसीलिए लीडर ऑफ द हाउस ने क्लेरिफिकेशन किया कि 2008 में भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जवाब नहीं दिया था, उस समय भी गृह मंत्री जी ने जवाब दिया था। और वैसे भी ये सामूहिक जिम्मेदारी होता है। कैबिनेट में प्रधानमंत्री और उनके जितने भी कैबिनेट सदस्य हैं उसमें से कौन जवाब देगा ये ऑपोजिशन पार्टी तय नहीं कर सकता है, ये सरकार ही तय करता है। ये रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। The House stands adjourned to meet at 4:30 p.m. today. उच्च सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष के अवरोध के बीच ही वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी टैरिफ पर संसद में बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच वार्ता जारी है, लेकिन भारत अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करेगा। पीयूष गोयल ने कहा कि हमारे निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है, भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सवाल पूछना चाहा, लेकिन उपसभापति ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया। गतिरोध के बीच कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन दिन भर में अब बात लोकसभा की कार्रवाई की। लोकसभा में कार्रवाई की शुरुआत भी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की सराहना के साथ हुई। सदन की ओर से इसरो वैज्ञानिकों को बधाई दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसरो के वैज्ञानिकों को उनके भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना की। माननीय सदस्यगण, दिनांक 30 जुलाई 2025 को श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र GSLV F-16 रॉकेट के माध्यम से नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। ये अपनी तरह का पहला मिशन है जिसके माध्यम से इस उपग्रह को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया है। इस उपग्रह को माइक्रोवेव इमेजिंग के उद्देश्य से भारत के इसरो और US के नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य वैश्विक लैंड इकोसिस्टम तथा समुद्री क्षेत्रों का अध्ययन करना है। हमें अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर अत्यंत गर्व है। ये सभा इस सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों की टीम को बधाई देती है और उनके द्वारा भविष्य में किए जाने वाले प्रयासों में के लिए सफलता की कामना करती है। इसके बाद जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल की कार्यवाही की शुरुआत की, विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान केवल एक ही प्रश्न पूछा जा सका। लगातार नारेबाजी के कारण उसका उत्तर भी नहीं दिया जा सका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में शालीनता बनाए रखने की अपील की, सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने को कहा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आप प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप शून्यकाल में अपने क्षेत्र की समस्याओं को नहीं उठाना चाहते। माननीय सदस्य, मैं पूरा आग्रह कर रहा हूं, अगर तख्तियां लेकर आएंगे तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। आप सदन को नियोजित तरीके से बाधित करना चाहते हैं, प्रश्नकाल जैसे विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय सदस्य, फिर मैं आग्रह कर रहा हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाइए। आपको इसलिए भेजा है, जनता ने चुनकर, नारेबाजी के लिए भेजा है, तख्तियों के लिए भेजा आपको। यह सदन चर्चा संवाद के लिए है, जनता के विचारों, उनकी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए।
ये तरीका उचित नहीं है। आप लाखों लोगों से चुनकर आते हैं, अपने कार्य व्यवहार को, आचरण को ठीक करिए। दुनिया देख रही है आपको, आपके मतदाता आपको देख रहे हैं। फिर मैं आग्रह कर रहा हूं, आप अपनी अपनी सीट पर बैठे, तख्तियां हटाएं। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित पत्र लोकसभा के पटल पर रखे गए। आज रखे गए पत्रों में विद्युत मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित पत्र शामिल थे। इसके अलावा समितियों के प्रतिवेदन सभा के पटल पर रखे गए। सांसद गणेश सिंह ने अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण पेश किए। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा के पटल पर रखे गए। इसके अलावा मंत्रियों की ओर से सभा के पटल पर अपने वक्तव्य रखे गए। विपक्ष की ओर से गतिरोध के बीच कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद शाम 4 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि भारत के निर्यात पर टैरिफ लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताज़ा घोषणाओं की सरकार समीक्षा कर रही है। मैं सदन को 30 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 1 अगस्त 2025 से द्विपक्षीय व्यापार पर लागू होने वाले टैरिफ के विषय पर दिए गए वक्तव्य के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत अपने व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10% से 50% तक एडिशनल ड्यूटी लगाने की बात कही गई थी। 10% की बेसलाइन ड्यूटी 5 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। भारत पर एडिशनल ड्यूटी 10% के बेसलाइन टैरिफ सहित कुल 26% की घोषणा की गई थी। मूल रूप से फुल कंट्री स्पेसिफिक एडिशनल टैरिफ 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाला था, लेकिन इसे शुरू में 10 अप्रैल 2025 को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया और बाद में 1 अगस्त 2025 तक और बढ़ा दिया गया। भारत और अमेरिका ने मार्च 2025 में एक न्यायपूर्ण, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA के लिए बातचीत शुरू की, जिसका लक्ष्य 2025 के फॉल यानी अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना था। दोनों पक्षों ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित पहली फिजिकल मीटिंग की चर्चा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत शुरू करने के लिए विस्तृत टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR को अंतिम रूप दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच नई दिल्ली और वॉशिंगटन DC में 4 दौर में फिजिकल मीटिंग्स हुई हैं, ताकि निर्धारित टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतिम रूप के लिए काम किया जा सके। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच कई वर्चुअल बैठकें भी हुई हैं। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों
एंटरप्रेन्योर्स उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मात्र एक दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। हम अपने रिफॉर्म्स और अपने किसानों, एमएसएमई और उद्यमियों की कड़ी मेहनत के बल पर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। यह भी अपेक्षित है कि हम कुछ ही वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अर्थशास्त्री भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देखते हैं। भारत वैश्विक विकास में लगभग 16% का योगदान दे रहा है। पिछले दशक में सरकार ने भारत को विश्व की विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के अंतर्गत परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। भारत की युवा, कुशल एवं प्रतिभाशाली वर्कफोर्स भारतीय उद्योग की इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा की क्षमता को निरंतर मजबूत कर रही है। पिछले 11 वर्षों के दौरान हमारे निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है। तेजी से संरक्षणवादी होती दुनिया में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया और एफ्टा देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते किए हैं। हम अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के व्यापार समझौते करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम किसानों और भारतीय कृषि के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। सरकार को विश्वास है कि हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर समावेशी और सतत विकास की अपनी तेज गति वाली यात्रा जारी रखेंगे। आत्मनिर्भरता की ओर भारत आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। इस दौरान सदन में कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्ष की ओर से लगातार अवरोध जारी रहा। आखिर में सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शून्यकाल नहीं करना चाहते आप? मान्य सदस्य नहीं बोलना चाहते? बोलना चाहते हो? सदन में चर्चा करना चाहते हो या नारेबाजी करना चाहते हो? सदन में अगर चर्चा करना है तो अपनी सीट पर जाइए, और नारेबाजी करना है तो सदन के बाहर सड़कों पे करो। यहाँ नारेबाजी नहीं अलाउ है। जाइए। सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 1 अगस्त 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हमारे विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर में आज इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।